Hello, guys, welcome back to my channel Aviation Mentors. So, as promised, I would be teaching you how to solve the payload numerical. So, basically, if we talk about the payload numericals, so they are pretty easy. And if you talk about these numerical, in the DGCA exam, you get approximately, let's say, out of 100, 5 to 10 marks, and they are very easy marks to get. The numerical seems very long, but they are very easy to solve if you know the trick. So today in this video, what I'm going to do is I will be teaching you how to solve the payload numerical. So let's begin with it. So first of all, to crack these numerical, I'm going to teach you a simple trick, and this is very important. So please write it down, revise it 2 3 times, and all the numericals will become easy for you. So once you get a numerical, what you need to do is you need to write down three things. You need to write down the maximum takeoff weight given in the numerical, and you need to write down the maximum landing weight given in the numerical, and you need to write down the maximum zero fuel weight given in the numerical. So these three things will be given to you in the numerical itself, and you can write down these three in the same order. Okay, so once you see the numerical, the first job is, as soon as you see the numerical, the first job is to write these three down in the piece of paper. Okay, so now you have written the max. Suppose maximum takeoff weight is given in the numerical, and I assume that value to be 1, and now the maximum landing weight is given. Now our job is to convert maximum landing weight into the maximum takeoff weight. Now let's talk about this. Now the maximum landing weight, if I add just my trip fuel, suppose I am adding just my trip fuel. Okay, so what I'm going to get is nothing but my takeoff weight, right? So this would be the value number 2. So before going to the value number 3, I'm going to explain you about this, the maximum landing weight and the trip fuel. So the first one was pretty easy. Okay, it is just simply the maximum takeoff weight which would be given to you in the numerical itself, and you just write down the value out here. So let's talk about how you can calculate the maximum landing weight and the trip fuel, and how does it give you the maximum takeoff weight. So guys, see, suppose this is my aircraft. Okay, so now it takes off from the runway, and it's going to complete its trip, and it's going to land on the aerodrome B. Suppose this is a airport A, and it is going to the airport B. Now, this is at this point of time where it is landing on the runway, its weight should be within the maximum landing weight of the aircraft. Whatever the permissible weight, whatever the weight permissible for this aircraft during the time of landing, it should be that. So we are considering it to be the maximum landing weight. Now, the aircraft has burnt fuel during the trip. Okay, so fuel is burnt during the trip. So the whatever the fuel is burned during the trip, it is known as your trip fuel. Okay, so this is your trip fuel. So let me just scroll down and write this for you. So this is the trip fuel. So the maximum landing weight is nothing but the amount of weight when the aircraft is landing, and the fuel burned during the trip is known as your trip fuel. So guys, if my maximum landing weight, I just add my trip fuel, whatever the fuel I have burned, what will I get? I will simply get my maximum takeoff weight, right? Because only in the maximum takeoff weight, I have just subtracted whatever the fuel I have burned during my entire trip. If I subtract it from maximum takeoff weight, I will obviously get my maximum landing weight, right? So just by adding the trip fuel in the maximum landing weight, I'm going to get my maximum takeoff weight. So this is very important to understand, and this maximum takeoff weight will be your value number 2. So
this is your value number 2. So suppose now you have got your value number 1 from simply by looking at the question, and you will get the maximum takeoff weight, which is your value number 1. Now I have told you to I have taught you how to calculate your वैल्यू नंबर 2. सो सिंपल, आपको मैक्सिमम लैंडिंग वेट क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको बस उसके अंदर ट्रिप फ्यूल को ऐड करना है. ठीक है, और ट्रिप फ्यूल भी क्वेश्चन में गिवन होगा. वो कैसे कैसे गिवन होता है, आपको थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं. दे विल गिव यू द फ्यूल कंजम्पशन रेट एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट द ट्रिप फ्यूल, दैट आई विल टेल यू. ओके, एंड नाउ the other thing is your maximum zero fuel weight. Now guys, let's understand this. If in the maximum zero fuel weight you add whatever the fuel is on board, okay, the zero fuel weight is nothing but the air, the weight of the aircraft without the fuel, with everything, with passenger, the cargo and everything on board, but except the fuel is known as your zero fuel weight, right? So if in the zero fuel weight I just add my fuel on board, what will I get? I will get another maximum takeoff weight, right? So this will be my value number 3. Now let's understand this. What is fuel on board? What needs to be considered? Because DGCA जो है, इधर ही बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यूल ऑन बोर्ड में क्या लेना है. वो ये की वैल्यू गलत ले लेते हैं, उससे उनकी नंबर 3 वैल्यू जो है कम आती है. सो लेट्स सी कि फ्यूल ऑन बोर्ड हमें कैसे लेना है और वैल्यू 3 को हमें कैसे निकालना है. सो सी, मैंने अभी बताया आपको कि आपको मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट जो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें आपको अपना फ्यूल ऑन बोर्ड ऐड करना है. यू हैव टू ऐड द फ्यूल ऑन बोर्ड. नाउ गाइस, द फ्यूल ऑन बोर्ड जो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, वो होता है आपका ट्रिप फ्यूल, जो भी आप ट्रिप में आप बर्न कर रहे हो. ठीक है, प्लस जो भी आप अपना रिजर्व लेके चल रहे हो, 30 मिनट का रिजर्व, 45 मिनट्स का रिजर्व, वट एवर द रिजर्व इज देयर, दैट इज नोन एज योर रिजर्व फ्यूल. So it is your trip fuel plus your reserve fuel. All right. Now understand one thing and please write it down in your notes. I'm going to put a double star here, that fuel on board in this calculation does not include your taxi and start fuel. Whatever the fuel you burnt in your taxi and in your start does not include in this your fuel on board. Because guys, what we are doing is we are now maximum takeoff weight was given. We are converting maximum landing weight and maximum zero fuel weight. We are just converting our maximum landing weight into the maximum takeoff weight, and we are converting maximum zero fuel weight into the maximum takeoff weight. So when we are converting the maximum zero fuel weight into the maximum takeoff weight, we are not considering a taxi fuel, the fuel which is burned during the taxi, and the fuel which is burned during the start. So just by adding fuel on board, which includes your trip fuel and your reserve fuel, into the maximum zero fuel weight, you will get your maximum takeoff weight. And this will be your value number 3. ये आपकी तीसरी value होगी. So what I'm going to do is I'm going to highlight this and please write it down. Maximum zero fuel weight, adding fuel on board, you get your maximum takeoff weight. This is your value number 3, and the fuel on board is your trip fuel and your reserve. And mark this, the fuel on board does not include your taxi and the start fuel. So अगर क्वेश्चन के अंदर आपको टैक्सी का फ्यूल दे रखा है और क्वेश्चन के अंदर आपको स्टार्ट फ्यूल दे रखा है, तो उनको आपको लेना ही नहीं है. उन वैल्यूज को आप इग्नोर कर देना, क्योंकि वही वैल्यूज जो हैं आपको कंफ्यूज करेंगी. दे विल कंफ्यूज यू दीज टू वैल्यू. सो अगर क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज आपको सपोज गिवन है, ये दो वैल्यू आपको दे रखी हैं, सो आपने इनको कंसीडर नहीं करना है. यू डोंट नीड टू कंसीडर दीज. ठीक है, आपको सिर्फ यू नीड टू टेक जस्ट द ट्रिप फ्यूल एंड द रिजर्व फ्यूल. यही आपको डीजी से कंफ्यूज करता है, बट नाउ वी नो हमें नहीं होना है कंफ्यूज. चलो, अब मैं आपको एक बारी और नंबर 2 वैल्यू, नंबर 3 आपको समझ आ गई होगी. सो अब मैं आपको नंबर 2 जो वैल्यू है वो मैं आपको बताता हूँ दोबारा एक बारी, कि लैंडिंग वेट में और ट्रिप फ्यूल में हमने कैसे करा था. सो लेट्स स्क्रॉल अप अ बिट. ओके, हियर वी गो.
So let's highlight this part as well. I'm going to highlight it with a different color. So yeah, okay. So maximum landing weight, I just added my trip fuel and it gives me my maximum takeoff weight, and this value I took it as number 2. It is very simple. मैं आपको एक डायग्राम बना के भी नॉर्मल समझा दूंगा, ताकि जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को है वो भी आपकी दूर हो जाएगी. ऑल राइट. सो गाइज नाउ, अब ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई. तो वैल्यू नंबर 1 हमारे पास आ गई. वैल्यू नंबर 1, सॉरी, मैं इसको जस्ट लेट मी हाईलाइट दिस थिंग. ओके. सो वैल्यू नंबर 1 जो है मेरी, जो है वो टेक ऑफ वेट से आ गई. वैल्यू नंबर 2 मेरी लैंडिंग वेट में ट्रिप फ्यूल ऐड करने से आ गई. और वैल्यू नंबर 3 मेरी जीरो फ्यूल वेट में फ्यूल ऑन बोर्ड ऐड करने से आ गई. तो अब मेरे पास गाइस तीन वैल्यू हैं. ओके. नाउ आई हैव थ्री वैल्यूज. वैल्यू नंबर 1, value number 2, and value number 3. So let's fare it up down. So now I'm going to write it here. So guys, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है ये, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे मैंने बताया, आपने लिखना है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, मैक्सिमम लैंडिंग वेट और मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट. फिर ये तो आपको डायरेक्ट गिवन होगा, तो इसकी तो वैल्यू ले ली नंबर 1. अब लैंडिंग वेट आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा, बट आपने क्या ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर कि आपका ट्रिप फ्यूल कहाँ दिया हुआ है. बस वो ट्रिप फ्यूल को लिखो और इसको ऐड करो, आपको मिल गई वैल्यू नंबर 2. फिर मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट गाइस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट ये मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट जो है ये कई बार घुमा फिरा के आपको देते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर आगे बताऊंगा. बट अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट लिखना है आपने, और इसके अंदर खाली आपको फ्यूल ऑन बोर्ड ऐड करना है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें खाली आपका ट्रिप फ्यूल और रिजर्व फ्यूल, यही दो फ्यूल ऐड होंगे, और ये आपको दे देगा वैल्यू नंबर 3. गाइस, इसमें से हमें क्या करना है, आप हमेशा ध्यान रखना, दो गोल्डन रूल हैं. रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका, कि टू कैलकुलेट, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम पेलोड, टू कैलकुलेट मैक्सिमम पेलोड, टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पेलोड, टेक लोवेस्ट ऑफ थ्री. आपको लोवेस्ट ऑफ थ्री लेनी है इनमें से वैल्यू. अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आपके कि कैलकुलेट द मैक्सिमम पेलोड, तो आपको इनमें से लोवेस्ट ऑफ थ्री लेनी है. जो भी इन तीनों वैल्यू में जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी लोवेस्ट वैल्यू आएगी आपने वो लेनी है. ओके. अभी इसको समझेंगे हम चीज को. अभी रूल नंबर 1 हो गया हमारा ये. सो नाउ गाइस, व्हाट वी आर गोना डू इज आई एम गोना राइट डाउन द रूल नंबर 2. देखो, क्वेश्चन में अगर ये पूछा है कि मैक्सिमम पेलोड क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम पेलोड, तो हम लोवेस्ट ऑफ 3 ले लेंगे. बट अगर मेरे को क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और मैं इसको बना दूंगा रूल नंबर 2, अगर उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट एक्स्ट्रा, टू कैलकुलेट एक्स्ट्रा फ्यूल, to calculate extra fuel or maximum fuel that you can carry, or maximum fuel, we take lowest of first two. We take lowest of first two. ओके, ये हो गया मेरा रूल नंबर 3. इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं डिफरेंट कलर से. आप इसको फेयर नोट्स बनाइए, और वट एवर द डाउट दैट यू हैव, यू कैन ड्रॉप इट इनटू द कमेंट सेक्शन. Okay, and I'm going to put my number at the end of the video, and you can simply call me and also ask your doubt, guys. If you have any doubt, I'm more than happy to help you guys. So rule number 2 क्या हो गया मेरा, कि अगर मुझे एक्स्ट्रा फ्यूल कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट एक्स्ट्रा फ्यूल और मैक्सिमम फ्यूल, वी टेक द लोवेस्ट ऑफ द फर्स्ट टू. गाइज, मैं इसको इसी कलर में लिख देता हूं. आपने ये जो लोवेस्ट ऑफ द फर्स्ट टू, यानी कि पहले और दूसरे वाले में से जो लोवेस्ट है, आपने वो वैल्यू लेनी है. ठीक है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की. ओके. नाउ, अब इतना समझने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आता हूं. आपने वैल्यू ले ली. अगर आपको पेलोड पूछा हुआ है, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपने तीनों में सबसे छोटी वैल्यू ले ली.
और अगर आपको एक्स्ट्रा फ्यूल पूछा हुआ है तो आपने पहले दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू ले ली। अब ये वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में यूज करेंगे और उससे हम अपना आंसर कैसे निकालेंगे, और आज मैं आपको इस वीडियो में खाली सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल बी सॉल्विंग 2 to 3 क्वेश्चन सो दैट यू गाइस गेट एन आइडिया कि आपको ये सब सॉल्व करना कैसे है। सो गाइज नाउ आपको ये पता चल गया। इसके बाद गाइज हमने आपने मेरी अगर पहले वीडियोस देखी होगी, इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो, तो उसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी जो थी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की। गाइस जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है आपका ड्राई ऑपरेटिंग वेट के, आपका फ्यूल ऑन बोर्ड के, और आपका पेलोड, ये होता है। ठीक है। अब गाइस हमने जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से वैल्यू निकाली है, वो रूल नंबर 1, अगर मुझे पूछा जा रहा है कि मेरे को मैक्सिमम पेलोड कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है मेरा, तो गाइस रूल नंबर 1 की जो वैल्यू है, जो रूल नंबर 1 से जो लोवेस्ट ऑफ 3 हमने वैल्यू ली है, उसको उठा के आपने कहाँ रखना है गाइस? आपने उठा के उसको यहां रखना है। ठीक है। अब रूल नंबर, अगर ये तो होगी बात रूल नंबर 1 की, अगर मैं वैसे तो मेजोरिटी क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम पेलोड ही पूछा जाएगा, और हमने क्या करा, लोवेस्ट ऑफ 3 ले लिया। सो लोवेस्ट ऑफ 3 लेने के बाद हमने उस वैल्यू को मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में उठा के रख दिया। गाइस जो ड्राई ऑपरेटिंग वेट होता है, ड्राई ऑपरेटिंग वेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा आपको। ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट गिवन होगा, नहीं तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखेंगे तो उसमें आई हैव टोल्ड यू कि ड्राई ऑपरेटिंग वेट को एपीएस वेट भी बोला जाता है, एयरक्राफ्ट प्रिपेयर्ड फॉर सर्विस। तो अगर आपको एयरक्राफ्ट प्रिपेयर्ड फॉर सर्विस वेट दिया हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, वो भी ड्राई ऑपरेटिंग वेट ही होता है। तो आपको ड्राई ऑपरेटिंग वेट गिवन में ये हमने निकाल लिया, ये आपको दिया होगा। अच्छा, फ्यूल ऑन बोर्ड हम निकाल लेंगे, फ्यूल ऑन बोर्ड का मैंने अभी अभी आपको बताया क्या था। और पेलोड हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट हमने रूल से निकाल लिया, उसमें से मैंने ड्राई ऑपरेटिंग वेट माइनस करा, और उसमें से मैंने फ्यूल ऑन बोर्ड माइनस करा, तो मुझे क्या आ जाएगा, मेरा पेलोड आ जाएगा, और यही मेरे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है गाइज। अच्छा, अब इसमें मैं दो चीजें और ऐड करता हूं कि आप लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाएंगे इसके अंदर। गाइस इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है, फ्यूल ऑन बोर्ड की बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि इसके अंदर जो है हम लोग फ्यूल ऑन बोर्ड कैसे निकालें। तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सपोज, चलो मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व कर देता हूँ ताकि पूरा ही आपको समझ आ जाए। देखो ये एक एग्जांपल है, डीजीसीए का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट आपको एक एयरक्राफ्ट का दिया हुआ है 45,000। ठीक है, 45,000 केजीज। उसके अलावा आपको एपीएस वेट एक एयरक्राफ्ट का दिया हुआ है जो कि है 22,000 केजीज। ठीक है, इसके अलावा आपको मैक्सिमम लैंडिंग वेट भी दिया हुआ था क्वेश्चन में जो कि था 35,000 केजीज। ओके, उसके अलावा मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको जो कि है 33,000 केजीज। नाउ उसने में, हाँ क्वेश्चन में लिख रहा हूं तो पूरा, तो उसमें हमें फ्लाइट टाइम दिया हुआ है, फ्लाइट टाइम मेरे को दिया हुआ है 3 आवर और 30 मिनट का, 3 आवर और 30 मिनट का। गाइस राइटिंग के लिए थोड़ा माइंड करना, माय राइटिंग इज नॉट दैट गुड। सो और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अपने सब फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए जो डीजीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनको बताइए, बिकॉज दिस इज अ फ्री नॉलेज, आप बैठ के सीख सकते हो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो बट आपको कुछ भी डाउट है तो आप इजीली ये वीडियोस देख के आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद मेरा फ्यूल कंजप्शन कितना है मेरा, 1500 केजीज पर आवर। उसमें मुझे रिजर्व फ्यूल दिया हुआ है 45 मिनट का। तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट मैक्सिमम पे लोड। गाइस देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं और भी एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि आपने क्वेश्चन देखते ही
आपने सबसे पहला काम, मैं इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ। ओके, सो गाइस सबसे पहले छूटते ही आपने क्या करना है, आपने तीनों वैल्यू लिख लेनी है। आपने मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, मैक्सिमम लैंडिंग वेट और मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, आंख बंद करके ये तीन चीजें पेपर पे इसी सीक्वेंस में ऐसे लिख देना। उसके बाद आप देखो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट आपको दिया हुआ है, ये रहा 45,000 केजी, तो मेरे को वैल्यू नंबर वन मिल गई मेरी 45,000, राइट। उसके बाद मैक्सिमम लैंडिंग वेट सीधा सीधा दिया हुआ है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कितना है 35,000, राइट। तो 35,000 दिया हुआ है मुझे। पर गाइज मैंने आपको अभी बताया था कि आपको मैक्सिमम लैंडिंग वेट में आपने क्या ऐड करना है, अपना ट्रिप फ्यूल, ठीक है। तो हमने लैंडिंग मैक्सिमम लैंडिंग वेट लिख दिया, उसमें हम ट्रिप फ्यूल ऐड करेंगे। अच्छा देखो जीरो फ्यूल वेट भी डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या 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 दिया हुआ है मेरा 33,000, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, इसके अंदर मैं अपना फ्यूल ऑन बोर्ड ऐड करूंगा। तो गाइस अब हमें देखना है कि मेरा ट्रिप फ्यूल क्या है और फ्यूल ऑन बोर्ड क्या है। सो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूं इसको, एंड देन वील कैलकुलेट द ट्रिप फ्यूल एंड द फ्यूल ऑन बोर्ड। सो लेट्स सी। सो गाइस देखो, अब हमें ट्रिप फ्यूल कैसे कैलकुलेट करना है। सो गाइस देखो, ट्रिप फ्यूल कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। देखो हमें ट्रिप दे रखी है 3 घंटे और 30 मिनट की, 3 आवर 30 मिनट की मेरे को ट्रिप दी हुई है, ठीक है। और मुझे फ्लाइट कंजप्शन कितना दिया हुआ है कि मैं, मेरे को दिया हुआ है 1500 केजीज पर आवर। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे तो आपको दिया हुआ है, ये देखो, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, 1500 केजीज पर आवर जो है ये रहा, 1500 केजीज पर आवर जो है मेरा फ्लाइट कंजप्शन है, ठीक है। तो फ्यूल कंजप्शन है, सॉरी। तो अब हमें क्या करना है गाइस, सिंपल सी चीज है। अब आपने 1 घंटे में आप कितना, सॉरी, 1 घंटे में आपने कितना फ्यूल बर्न करा, आपने 1 घंटे के अंदर 1500 केजीज जो है फ्यूल बर्न करा। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ओके, 1 घंटे में, जस्ट अ सेकेंड, ऑल राइट, ये थोड़ा सा टेक एन इरेज। Okay, give me a second, guys. Okay, okay, मैं इसको, all right. So now 1 hour, in 1 hour you are burning 1500 kgs of fuel, right? ये तो given है क्वेश्चन में। So guys देखो, 3 hour 30 minute क्या है, 3 hour 30 minute is nothing but your 3.5 hours, right? ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है। अगर इसमें भी आपको डाउट होगा तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करना होता है, बट ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो 1 आवर में आप 1500 खर्च कर रहे हो, तो आप 3.5 आवर की फ्लाइट में कितना करोगे, सिंपल 1500 इंटू 3.5, और ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी गाइस, कितनी आ गई है 5250। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये आएगी आपकी 5250। नाउ गाइज ये जो हो गया, ये मेरा हो गया ट्रिप फ्यूल, ये हमने ट्रिप फ्यूल कैलकुलेट कर दिया। अब ये वैल्यू किधर जाएगी गाइज, ये वैल्यू जाएगी इसके अंदर। देखो ये वैल्यू होगी मेरी नंबर वन, और नंबर टू वैल्यू मेरी कैसे आएगी, इसमें 35,000 में मेरे को ये 5250 को जस्ट ऐड करना है। चलो वो हम करेंगे, बट हम पहले जाते हैं अपना फ्यूल ऑन बोर्ड कैलकुलेट करने के लिए। गाइस चलो, अब let me just scroll up. I'm just having some difficulty in scrolling up and down, so just please mind that. Okay, just a second. All right. So let's calculate a fuel on board. गाइस तो फ्यूल ऑन बोर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बहुत सिंपल चीज बताई थी कि जो फ्यूल ऑन बोर्ड होता है मेरा, वो मेरा होता है टैक्सी फ्यूल प्लस में मेरा रिजर्व फ्यूल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये मेरा फ्यूल ऑन बोर्ड में, सॉरी, टैक्सी और रिजर्व नहीं, टैक्सी फ्यूल नहीं होता, सॉरी 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 गाइस, टैक्सी फ्यूल नहीं होता, टैक्सी का और स्टार्ट का तो फ्यूल हम लेते ही नहीं है फ्यूल ऑन बोर्ड में। जो मेरे फ्यूल ऑन बोर्ड होता है वो मेरा रिजर्व और ट्रिप फ्यूल होता है।
तो ट्रिप फ्यूल अब हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, वो है मेरा 5250। अब मुझे खाली रिजर्व कैलकुलेट करना है गाइस। तो जब हमने क्वेश्चन ऊपर लिखा था तो उसमें मेरे को दिया हुआ था कि वी हैव 45 मिनट का रिजर्व फ्यूल, हमारे पास 45 मिनट का रिजर्व है। तो देखो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, अब हमें पता है कि हम 60 मिनट के अंदर हमारा जो कंजप्शन है वो है 1500 केजीज का। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर कितना कंजप्शन हो जाएगा मेरा, 1500 डिवाइडेड बाय 60। और आपका 45 मिनट के अंदर कितना कंजप्शन हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय ये 45 मिनट के अंदर कितना हो गया, सिंपल यूनिटरी मेथड है, 1500 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 45। गाइस, पायलट एग्जाम्स में ये यूनिटरी मेथड की ही कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा मैथमेटिक्स आपको ना कोई पूछेगा ना आपको आनी चाहिए, बट आपका ये चीज तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब आप इस चीज को कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो ये आपका लगभग आएगा 1125 के अराउंड। और आपको ये मिल गया आपको फ्यूल ऑन बोर्ड। तो गाइज, अब हमारे पास सब चीज है, अब हमें सिंपली एक चीज करनी है, अब हमें ये तीनों चीजों को अब वैल्यूज में लिखनी है। तो अब दोबारा से मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट था, मैक्सिमम लैंडिंग वेट था, और मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट था। ठीक है, ये अलग से है। ओके, तो टेक ऑफ वेट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था 45,000, मैंने सिंपल लिख दिया, ये मेरी होगी वैल्यू नंबर 1। अच्छा, मैक्सिमम लैंडिंग वेट क्वेश्चन में गिवन था 35,000, उसके अंदर मुझे ट्रिप फ्यूल ऐड करना था। ट्रिप फ्यूल मैंने कितना निकाला, 5,250। तो जब 5,250 को आप 35,000 में ऐड करोगे तो आपका आएगा 40,250, 40,250, राइट। ओके, नाउ मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट गाइस, सिंपली मुझे क्वेश्चन में गिवन था 33,000। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या ऐड करना था, फ्यूल ऑन बोर्ड। फ्यूल ऑन बोर्ड मेरा क्या होता है, ट्रिप फ्यूल और रिजर्व फ्यूल। ट्रिप फ्यूल मेरा कितना था, 5250, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है हमने। और मेरा जो रिजर्व था 45 मिनट का, वो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 1125। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ये होगी मेरी वैल्यू नंबर 2। इन सबको मैं ऐड करूंगा तो आ जाएगी मेरी वैल्यू नंबर 3, 39375। गाइस देखो, वैल्यू नंबर 1 पता है, 2 पता है, 3 पता है। क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है कि आपको मैक्सिमम पेलोड कैलकुलेट करना है। तो रूल नंबर 1 लग जाएगा इसके अंदर। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, लोवेस्ट ऑफ 3 लेनी है। तो लोवेस्ट ऑफ 3 क्या है गाइस, 39375। तो सिंपल 39375 हो गया मेरा MTOW, लोवेस्ट ऑफ 3। अब आपको जो इक्वेशन बताई थी, सीधा साधा वो लिख दीजिए कि जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है वो होता है ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस में फ्यूल ऑन बोर्ड प्लस में पेलोड। ये वैल्यू हमने लोवेस्ट ऑफ 3 से निकाली, जो कि है 39375। ऊपर आपने देखा होगा आपको एयरक्राफ्ट प्रिपेयर्ड फॉर सर्विस का वेट दिया हुआ है, वो क्या होता है, ड्राई ऑपरेटिंग वेट। उसकी वैल्यू क्या दी हुई थी, 22,000। अब फ्यूल ऑन बोर्ड कहां से निकालेंगे गाइस, फ्यूल ऑन बोर्ड हमको ऑलरेडी गिवन है, जो हमने यहां निकाला है। कितना था वो, 1125 और प्लस 5250, ये था मेरा फ्यूल ऑन बोर्ड। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 6375 आ जाएगा, प्लस पेलोड। अब आप इन दोनों वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे तो आपका पेलोड जो आएगा मैक्सिमम, वो आएगा 11,000। गाइज, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। This is your answer that you can carry 11,000 kgs of maximum payload। मैक्सिमम पेलोड आप कितना कैरी कर सकते हैं, 11,000 किलो। तो ये सिंपल है। ठीक है, आपको मैं और एग्जांपल और न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी आपको जो गाइस समरी में अगर आपको दूं, आप ज्यादा अगर आपको समझ भी नहीं आया हो इस चीज में तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि और न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, और जो थोड़े से टफ हैं, या और जो जहां घुमा सकती है डीजीसी आपको, वो भी मैं बताऊंगा। बट ये बेसिक है, इससे ऊपर डीजीसी आपसे पूछेगा भी नहीं। तो गाइज, इसकी एक बारी समरी हम लोग कर लेते हैं। लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप फॉर यू। ओके, तो समरी में गाइज आपने जो मेन चीज
इसके अंदर याद रखनी है, वो रखनी है ये। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आपने क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही आपको ये तीनों वैल्यू लिख लेनी है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, मैक्सिमम लैंडिंग वेट, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, लैंडिंग वेट एंड जीरो फ्यूल वेट। ये होगी वैल्यू नंबर 1 आपकी, ये हो जाएगी वैल्यू नंबर 2 एंड ये हो जाएगी वैल्यू नंबर 3। लैंडिंग वेट के अंदर आपको ट्रिप फ्यूल ऐड करना है। ट्रिप फ्यूल आप कैसे निकाला था हमने इस वाले क्वेश्चन में, हमें फ्यूल कंजप्शन दी हुई थी पर आवर की। ठीक है, आपको फ्यूल कंजप्शन दी हुई होगी और आपको फ्लाइट टाइम दिया हुआ होगा, वहां से आपका ट्रिप फ्यूल निकल जाएगा। मेजोरिटी क्वेश्चन में यही होगा, कई बार ये डायरेक्ट भी दे देते हैं। और मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसके अंदर हमने फ्यूल ऑन बोर्ड याद ऐड कर दिया। बट इसमें एक चीज याद रखना गाइस कि जो ये फ्यूल ऑन बोर्ड हम ले रहे हैं, इसमें मेरा ट्रिप फ्यूल और रिजर्व ऐड होगा, ना तो मेरा स्टार्ट फ्यूल ऐड होगा, ना ही टैक्सी फ्यूल ऐड होगा। अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो उनको इग्नोर कर देना, वो इस जगह नहीं आएगा, इस फ्यूल ऑन बोर्ड में नहीं आएगा वो। ठीक है, तो आपने जीरो फ्यूल वेट में फ्यूल ऑन बोर्ड ऐड करा तो आपको मिल गई वैल्यू नंबर 3। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपको मैक्सिमम पेलोड कैलकुलेट करना है तो आप इन तीनों में से लोवेस्ट ऑफ 3 ले लो, और अगर आपको एक्स्ट्रा फ्यूल या मैक्सिमम फ्यूल करना है तो आप लोवेस्ट ऑफ फर्स्ट 2 ले लो। ठीक है, तो ये आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल कराऊंगा। अच्छा, एक छोटी सी बात और, देखो यहाँ हम जब ट्रिप फ्यूल कैलकुलेट करते हैं और यहाँ हम फ्यूल ऑन बोर्ड कैलकुलेट करते हैं, तो आपका आधा काम तो यही हो जाता है। जब आपको फ्यूल ऑन बोर्ड कैलकुलेट करना है तो आपको उसमें खाली ट्रिप फ्यूल और रिजर्व ही तो ऐड करना है। आपने ट्रिप फ्यूल तो कैलकुलेट कर ही लिया, तो फ्यूल ऑन बोर्ड में आपको खाली ट्रिप फ्यूल और रिजर्व डालना है। तो कई बार क्या होता है, रिजर्व कुछ होता ही नहीं, तो खाली आपने यही वैल्यू ऐड कर देनी होती है ट्रिप फ्यूल की, तो वो भी सिंपल हो जाता है। हम और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसके, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे नेविगेशन के। तो आप ये रिवाइज करिए guys, please share it with your friends, like and subscribe the channel if you like my videos. whatever your feedback is, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ इसके ऊपर। और एट द एंड यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, जो कि है एविएशन एविएशन मेंटोर, एविएशन मरीन मेंटोर्स। आप इस पे इंस्टाग्राम पेज है ये, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके लाइक करिए इसको। और कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आप मेरे को इस पे डीएम भी कर सकते हैं। ऑलराइट, so guys, thank you for watching this video. Whatever the doubt you have, you can just comment it. Okay, thank you, bye bye and take care, have a good day.